हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश बुक 2 का लेसन नंबर 24 कॉपरेट एंड प्रॉस्पर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 24 कॉपरेट एंड प्रॉस्पर, सहयोग और समृद्धि। India is one of the largest producers of milk today. Yet, in the past, the farmer who reared cattle and produced this huge amount of milk in the country remained poor. How they worked very hard. This story is about how Sardar Vallabhbhai Patel, a freedom fighter and the first Deputy Prime Minister of India, helped to improve the lives of the cattle farmers of Gujarat by organizing them into a cooperative called the Amul Dairy. आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। भारत आज दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। फिर भी पूर्व में देश में मवेशियों का पालन पोषण करने वाले और इस भारी मात्रा में दूध का उत्पादन करने वाले किसान गरीब थे। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की। यह कहानी है कि कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के पशुपालकों को अमूल डेयरी नामक एक सहकारी संस्था में संगठित करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। Is there anyone in India who has not seen this advertisement? This little girl has created history by being the longest running mascot icon symbol for Amul butter. Some famous advertisement lines for Amul are utterly butterly delicious, Amul and Amul the taste of India. क्या भारत में कोई है जिसने इस विज्ञापन को नहीं देखा है? इस छोटी लड़की ने अमूल बटर के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाला सुमकर चिन्ह प्रतीक बनकर इतिहास रचा है। अमूल के लिए कुछ प्रसिद्ध विज्ञापन लाइनें हैं। पूरी तरह से स्वादिष्ट, स्वादिष्ट अमूल और अमूल भारत का स्वाद। We all know that butter and many other products are made from milk. Can you think of some more interesting jingle of or catchy slogans or advertisement lines for milk, butter, ghee or curds? Dahi. Write them down. You can even try sending them to the chairman president Amul Dairy by email. हम सभी जानते हैं कि मक्खन और कई अन्य उत्पाद दूध से बने होते हैं। क्या आप दूध, मक्खन, घी या दही के लिए कुछ और दिलचस्प जिंगल्स या आकर्षक नारे या विज्ञापन लाइनों के बारे में सोच सकते हैं? इन्हें लिख लीजिए और उन्हें ईमेल से अध्यक्ष अमूल डेयरी को भेजने की कोशिश कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। Let us read the text. हम पाठ पढ़ते हैं। With Sardar Vallabhbhai Patel's strong support, the cattle farmers of Gujarat were brought together in a cooperative group. This not only improved their lives a lot, but also led to the setting up of one of India's most successful industries. It also made Gujarat one of the richest and most developed states of India. What is a cooperative? How does it work? Read the story to find out. सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत समर्थन के साथ गुजरात के पशुपालकों को एक सहकारी समूह में एक साथ लाया गया। इससे न केवल उनके जीवन में बहुत सुधार हुआ, बल्कि इससे भारत के सबसे सफल उद्योगों में से एक की स्थापना हुई। गुजरात भारत के सबसे अमीर और सबसे विकसित राज्यों में से एक है। सहकारी क्या है, यह कैसे काम करता है, यह जानने के लिए कहानी पढ़ें। The people of Gujarat were mostly farmers. They reared cattle but remained poor.
Despite their hard works, they always remained in want. The poor plight of these farmers moved the heart of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. He was determined to bring prosperity into their lives, so he decided to organize them into a cooperative force and provide them with a steady source of income. This task was assigned to Mr. Tribhuvan Das Patel. He united the disorganized farmer and started a cooperative dairy unit. This system of cooperative effort eliminated the middleman who harsh and exploited the ignorant farmers. But Tribhuvan Das Patel found it difficult to compete with a British dairy in मुंबई। अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। गुजरात के लोग ज्यादातर किसान थे। उन्होंने मवेशियों को पाला लेकिन गरीब बने रहे। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वे हमेशा चाहते थे इन किसानों की खराब दुर्दशा ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिल हिला दिया। वह उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक सहकारी शक्ति में संगठित करने और आय के एक स्थिर स्रोत के साथ प्रदान करने का निर्णय लिया। यह कार्य श्री त्रिभुवन दास पटेल को सौंपा गया था। उन्होंने असंगठित किसानों को एकजुट किया और एक सहकारी डेयरी इकाई शुरू की। सहकारी प्रयासों की इस प्रणाली ने अज्ञानी किसानों को परेशान करने और उनका शोषण करने वाले बिचौलियों को खत्म कर दिया। लेकिन त्रिभुवन दास पटेल को मुंबई में एक ब्रिटिश डेयरी से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल था। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। At this point of time, it was kind providence that brought a young, energetic, intelligent, and ambitious Indian engineer trained in America to work at the Dairy Research Institute, Anand. Tribhuvan Das sought this clever young man's assistance. This young man was none other than Varghese Kurian. He helped Tribhuvan Das to set up a processing plant. This marked the birth of Amul, and the rest is history. Shall we trace the history and the man who made this history? It tells how he stopped incessantly in order to expand Amul milk unit. It also tells us about how through his relentless effort the dream of Vallabhbhai Patel was fulfilled. अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस समय यह एक प्रकार का प्रवेश था जिसने अमेरिका में प्रशिक्षित एक युवा और जवान बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी भारतीय इंजीनियर को डेयरी अनुसंधान संस्था आनंद में काम करने के लिए लाया। त्रिभुवन दास ने इस चतुर युवक की सहायता मांगी। यह युवक कोई और नहीं बल्कि वर्गीस कुरियन था। उन्होंने त्रिभुवन दास को एक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में मदद की। इसने अमूल के जन्म को चिन्हित किया और बाकी इतिहास है। क्या हम इतिहास और उस आदमी का पता लगा लेंगे जिसने यह इतिहास बनाया है? यह बताता है कि अमूल दूध इकाई के विस्तार के लिए वह लगातार कैसे आगे बढ़ता है। यह भी बताता है कि उनके अथक प्रयासों से कैसे वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा हुआ। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। Dr. Varghese Kurian was born in Calicut on 26 November 1921. He got his first degree in physics and he studied BE Mechanical Engineering at the University of Madras. He went on a scholarship to the USA and passed MS degree with distinctions. He was also very good at cricket, tennis and boxing. डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कालकीट में हुआ था। उन्होंने भौतिक में पहली डिग्री प्राप्त की और उन्होंने बीई मद्रास विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। वह यूएस में छात्रवृत्ति पर चले गए और एमए की डिग्री प्राप्त की। वह क्रिकेट, टेनिस और मुक्केबाजी में भी बहुत अच्छे थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन डेवलप्ड माफ करना, when he returned to India, he joined the government dairy at Anand in Gujarat as a dairy engineer.
but he felt it was not a challenging job for him. So he agreed to help Mr. Tribhuvan Das Patel in setting up a milk processing plant. This was how the Amul Dairy came into existence in Gujarat. जब वे भारत लौटे तो उन्होंने गुजरात के आनंद में डेयरी इंजीनियरिंग के रूप में सरकारी डेयरी से जुड़ गए, लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण काम नहीं है, इसलिए उन्होंने दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में श्री त्रिभुवन दास पटेल की मदद करने पर सहमति व्यक्त की। इस तरह गुजरात में अमूल डेयरी अस्तित्व में आई। Doctor Verghese Kurian developed the Amul Dairy unit into the large cooperative dairy in India as a result of Dr. Kurian's relentless effort. The poor milk producers was protected from being exploited. The farmer came to appreciate the spirit of cooperation. In addition to acquiring marketing skills, he introduced various reforms in the administration of Amul Dairy. He proposed to distribute half of its profit to the milk producer as divided. Dr. Kurian's reform improved the rural economy considerably. This proved the saying, the woman who on a buffalo celebrate Diwali every day. डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल डेयरी यूनिट में भारत में सबसे बड़ी सहकारी डेयरी के रूप में विकसित किया। डॉक्टर कुरियन के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादों को शोषण से बचाया गया। किसान विभिन्न कौशल प्राप्त करने के अलावा सहयोग की भावना की सराहना करते हैं। उन्होंने अमूल डेयरी के प्रशंसा में विभिन्न सुधार पेश किए। उन्होंने अपने मुनाफे का आधा हिस्सा दुग्ध उत्पादकों को लाभांश के रूप में वितरित करने का प्रस्ताव दिया। डॉक्टर कुरियन के सुधारों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किया। यह कहावत साबित होती है, जो महिला भैंस का मालिक है वह हर दिन दिवाली मनाती है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। Dr. Kurian made India the largest milk producer of the world. Dr. Kurian established the National Dairy Development Board (NDDB) and designed the Operation Flood program. Dr. Kurian may write the called the architect of modern dairy industry and the father of the white revolution. He has been honored with very high civilian awards such as Padma Shri and Padma Bhushan. His achievement was recognized internationally and he was awarded the prestigious Ramon Magsaysay Award for Community Leadership. डॉक्टर कुरियन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। डॉक्टर कुरियन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की और ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम डिजाइन किया। डॉक्टर कुरियन को आधुनिक डेयरी उद्योग का वास्तुकार और श्वेत क्रांति का जनक कहा जा सकता है। उन्हें बहुत उच्च नागरिक पुरस्कारों जैसे पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Dr. Kurian has succeeded in keeping the wolf from the door of our farmers. His efforts made the Indian farmer healthy, wealthy, cheerful, and wise. Dr. Kurian हमारे किसानों के दरवाजे से भेड़िया रखने में सफल रहे। उनके प्रयासों ने भारतीय किसान को स्वस्थ, धनवान, हंसमुख और बुद्धिमान बनाया है। Thanks to Dr. Kurian that our children today are blessed with quality milk, butter and cheese, not to forget the chocolate and ice cream. अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर कुरियन को धन्यवाद कि हमारे बच्चे आज गुणवत्ता वाले दूध, मक्खन और पनीर के साथ धन्य हैं। चॉकलेट और आइसक्रीम को नहीं भूलना। इस तरह से जो है ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आइए सारे इंटेक्स क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ टर्मिनल क्वेश्चन को भी। मेरा इंटेक्स क्वेश्चन 24.1, जहां पे अगर नहीं दिखता हो वहां पे पॉज करें या फिर जूम कर कर देख लें। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें।
अगर कोई हार्ड वर्ड से भी प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में रखे। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 24.2। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर से चेक करें। और इसमें कुछ ग्रामर सेक्शन भी है, उसे भी बनाने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ ले। और सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल क्वेश्चन का आंसर दिया गया है इस चैप्टर में, तो आंसर से चेक कर ले क्या कहां पे सही है और कहां पे गलत है। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चंस और यहां से आंसर स्टार्ट है। सारे का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।